So, hey Shreyansh, how are you? First of all, I'm fine. What about you? great, yeah. We have talked already through WhatsApp groups, right? Yeah. So let me Yeah. introduce myself for the first, like as I'm talking for the first time, like visibly, face to face, right? So, so my name is Khushi Chitra Singhal, as you know. I'm the founder and editor-in-chief at Partisan Solutions. Yeah. Okay. First of all, You are doing a congratulations. great work. Yeah. Uh, let me say it. You are doing Okay. a very great work. I don't know what about others, but it helped me a lot. Thank you. That precise content, it's totally ready-made thing for every GRF or net aspirant. Thank you so much. Yeah, I'm Totally. really glad that people are actually taking help of it and clearing the exams. Because when I started ना मेरे दिमाग में ये था that I don't want to be another coaching institute. I want to build a platform that actually can help people and create a community around that. So Politics and Solutions, It's really yeah, so much helping. yeah, Of at merely mere prices. yeah. That's I'm crux. I'm glad. I'm glad. So I would love to know about your background, your education. Where are you from particularly? Mm. I'm from. Do you ever heard Bhind in Madhya Pradesh, Bhind Morena region, Chambal region? Okay. I'm Hind, right? Ah, great. Bhind. Yeah, Okay. I'm from Bhind, uh, and I've completed my masters from Indore, DAVB, just Okay. last year, from the very UTD campus. Uh, a lot many things were there. I have very good faculties there, so they always helped me about these things कि अच्छे से पढ़ काम आएगा. मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं बहुत कम इंटरेस्टेड था यूजीसी के एग्जाम के लिए. Okay. उन्होंने बोला कि नहीं अच्छा ऑप्शन है करके देख और मुझे मेरा इंटरेस्ट दिखता था उनको आईआर में बोलता अच्छा पढ़ता है तू किया कर तो So, इंटरेस्ट आया फिर एग्जाम लेके बैठा तो मुझे लगा कि करते हैं देखते हैं तो पहला वाला एग्जाम दिया तो बहुत फॉर्मल वे में दिया इनफॉर्मल वे में दिया था कि चलो दे के आते हैं okay. क्या है. So उसके बाद मिला. was it your first attempt या आपने पहले attempt दे चुके हो अभी? नहीं इससे पहले मैंने एक अटेम्प्ट दिया था. Okay. हाँ. It was second attempt, right? हाँ. हाँ Okay. इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. Okay. So like how much time did you take to complete the whole syllabus? Because काफी vast is syllabus, right? People find it difficult to cover it from many resources. So how did you navigate that? Uh, Simply, I'm again repeating. I didn't have to do so much hectic work because all your notes and some of my cruxy notes from college Okay. helped me. And the very strategic thing I think I have done through this preparation, I made synopsis notes we can say, the very Okay. short notes which are easy to which help me to revise at last moment. uh, Yeah. Even I can agree the, because I will also say to students that use website but make your own notes because it is very easy to cover the whole syllabus very fast when you have your own notes now. Even practice and yeah, revise it on a daily basis. It actually helps you getting good marks, right? it's really helped me. And you won't believe, for the very first time I have made notes. Oh इससे wow. पहले मैंने कभी notes नहीं बनाए. I was preparing for state PCSS and just started for UPSC. I have never made notes, but Okay. Great. my So जो आपका it's तो यूपीएससी के लिए आप काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो या अभी स्टार्ट किया आपने प्रिपेयर करना उसके लिए? नहीं अभी अभी शिफ्ट किया है मैंने. अभी ओके. तक कॉलेज चल रहा था. कॉलेज के साथ ही स्टेट पीसीएस में तो इंटरेस्ट ले रहा था. फिर बोलता नहीं मजा नहीं आया यूपीएससी करके देखते हैं. स्टेट पीसीएस बहुत ज्यादा ग्रेट. स्टेटिक लग रहा था. स्टेबल ओके. हो रहा था इसीलिए. इवन आई हैव हर्ड कि एमपीपीएससी में काफी स्टेट्स पूछते हैं, है ना? स्टेट लेवल अच्छा खासा है. It's या exactly या that was it was totally different from my studying pattern. I do not like to study ओके. like in facts. बट आजकल uh, तो एनटीए में भी एनटीए इज लाइक द वे इट इज मेकिंग पेपर ऑल्सो लाइक 60 to 70% पेपर इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स ओनली. फैक्ट पे ही आ रहा है काफी पेपर ना yeah, काफी टाइम एनटीए में. तो लाइक exactly. हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर फैक्चुअल पार्ट बिकॉज कॉन्सेप्ट हर कोई कर लेता है. uh, uh, God knows. I have used some themes and some tricks, especially for books and statement. ओके. आई वुड लव इफ यू कैन शेयर. They are in.
because Yeah, I would love if you हाँ can share like with क्योंकि वो me, कुछ like what tricks you use particularly so that जो भी students देख रहे हो उनको भी help हो सके. देयर टू थिंग्स Okay. फर्स्ट थीम्स पे काम किया जैसे कोई भी थिंकर है उसका एक आइडिया रहता है कि इसने ये बोला है तो उस हिसाब से आप थीम करेक्ट करते हो सेकंड थिंग लाइक मैनेजरियल रिवॉल्यूशन Okay. बुक इज Yeah, देयर yeah. सो आई उससे रिलेटेड कोई ट्रिक बना लिया और भी बहुत सारी चीजें हैं और बाकी जो फेवरेट थिंकर्स हैं वो तो हेल्प करते ही हैं वो तो कभी बोलते ही नहीं है तो ये जो Okay. चीज थोड़ी टफ लग रही है या फिर कोई कोई होता है कि आपको फेवरेट लगने लगता है तो वो इजीली रिकॉल होने लगता है इजीली मैं एक थिंकर से दूसरा थिंकर कनेक्ट कर देता हूँ तो एक ऐसे Yeah. हेल्प हो रही थी Because political science एक overall ये भी था connected subject है. Political science overall connected subject है. कनेक्टिव चाहे आप कोई भी पढ़ लो. ऑल Totally agree. ऑल द 10 यूनिट्स ऑल द 10 यूनिट्स आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी Yeah. अदरवाइज वो पूरा हॉच पॉच हो जाएगा और यू विल नॉट गो थ्रू फ्रॉम इट Definitely, definitely. अच्छा, आपने PYQ solve किए थे because I feel that PYQ help actually a lot in preparation, right? PYQs and mock test. So what is your take on that? आई हैव some last papers I did not use any previous book or anything else because रिसेंटली मैंने एग्जाम दिया था ये वाला इससे पहले एग्जाम देख लिए थे और साथ ही मैंने सेट भी दिया था ये वाला Okay, हाँ okay, okay. सेट का मैंने आंसर रिजल्ट मेरा चेक नहीं किया उसका रिजल्ट आ गया है मेरे 100 मार्क्स हो रहे थे तभी चेक किया था देखते हैं क्या आ गया आपको है चेक करना चाहिए. हो गया होगा मे बी. आई होप सो. अगर यूजी सेट अच्छा निकला है तो वो भी अच्छा निकला ही होगा. मैंने जस्ट चेक नेट इट. की मैंने फिर उसका एडमिट कार्ड मेरा गुम हो गया है कहीं तो मुझे उसको निकाल के कुछ देखना पड़ेगा ये बात की बात है हाँ हम क्या बात कर रहे थे हाँ, अ, सेट आपके जो आई गेस मिस्टेक्स क्या करते हैं ना, मिस्टेक्स से प्रिपरेशन. When I forgot. You were saying something. Just try to recall that. वी वर डिस्कसिंग प्रीवियस हाँ, yeah, पीवाईक्यूज की बात कर रहे थे PYQs, right. हाँ पीवाईक्यूज में ज्यादा मैंने इतनी क्यों ही बोलूं इतना ज्यादा मेहनत नहीं किया बस सिलेबस से स्टिक हो गया रहा था मैं कि सिलेबस से बाहर नहीं जाना है और बाकी जो आपका नॉलेज है उसको बस उतना ही समेट के रखना है कनेक्ट करना है तो बने थे आई वांट से यू वॉन्ट बिलीव जो पहला डीआई का पोर्शन होता है या द वेरी फर्स्ट पोर्शन ऑल 5 क्वेश्चंस वर रॉन्ग इन ओके. आजकल डीआई भी actually मतलब actually टफ आ what रहा I है. to- डीआई टफ आ रहा है आजकल. it, बिकॉज व्हेन आई it was it या was a little bit tough but actually what happened मैं उसको क्रैक कर नहीं पा रहा था और ओके. बहुत जब लास्ट में मुझे लगा कि नहीं आई आई फाउंड द वे कि ये क्रैक होने वाला है फिर मुझे लगा कि आई 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 डोंट नो व्हाई बट आई गिव अप ओके तुक्का लगाते हैं भरना तो था ही टाइम हो गया था और एक काम करते हैं खटते हैं इसको ओके. और जब इसका रिजल्ट आया तो मैंने जब चेक किया तो मैंने बस ये 5 क्वेश्चंस चेक किए कि ये मेरे कैसे गए हैं ओके. और आंसर की मैंने देखे तो पांचों गलत थे मैंने कहा ठीक है ये अब मैं मिला अब मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ होगा देख लेंगे क्योंकि मुझे पता था मेरा सेकंड पेपर अच्छा गया था ओके. ओके. और उसी पर था थोड़ा सो लाइक अभी तो कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, राइट? 234 गई थी लास्ट टाइम. बहुत ज्यादा इट वाज द बहुत हाईएस्ट. इट ज्यादा वाज द हाईएस्ट. सो लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर पेपर 1 पर्टिकुलरली? बिकॉज़ काफी लोग ना स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज को लेके. Um, I bought KVS Madan for that ओके. exam for paper one, but it was very bulky and very deep. Uh, we can say 3 to 4, hardly 3 to 4 days I spent on it. ओके. Rarely some hours of the day to read the particular commissions, education commissions, static portion we can say. I never take on maths, never take on reasoning. इन ओके. पर कभी मैंने देखा ही नहीं कि तो ये कर लेंगे पता है लेकिन आपको स्टैटिक देखना पड़ता है कभी कभी क्या होता है इजी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आपको पता नहीं रहते तो वो गलत हो जाते हैं इसलिए या आई थिंक थोड़ा उस पर काम करना आई चाहिए गेस पेपर वन इसेंशियल है computers, logarithm, and also like quantitative, qualitative हाँ methodology. These things are very important to now have knowledge. हाँ that teaching aptitude Yeah. that research aptitude RM helped me research methodology I have studied in my college so it helped me Okay, 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 okay. टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशन कमीशन वगैरह ये सब मैंने एक बार देख के गया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पेपर वन आप मानो या नहीं मानो ये कहीं ना कहीं आपको लीड करवाता है Yeah. मतलब आप नेक्स्ट से जेआरएफ जाना है तो यू हैव टू
कंप्लीट थरोली योर पेपर वन, क्योंकि आप पेपर टू के भरोसे बहुत रेयर हो जाएगा। या डेफिनेटली, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट स्पेशली, जब कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, हम्म। आपके पेपर वन पे जब फोकस कट ऑफ करना ही इतना पड़ेगा। हाई जा रहा है। या 234 आउट ऑफ 300, आई गेस 45 का सबसे हाईएस्ट गया है इस बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ है ना? इसका सबसे हाईएस्ट ही गया है। हाँ, मेरे मेरे फ्रेंड्स ने भी यही कुछ बताया था कि श्रेयांश इस बार बहुत कट ऑफ हाई जा रहा है यार। मेरा लास्ट टाइम जो री एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स थे 108, री ओके एग्जाम होने से पहले वाले में, ओके ओके जो ओके ऑफलाइन मोड में हुआ था। ओके। 108 मार्क्स थे, तो आई वाज थिंकिंग कि माय फ्रेंड्स वर टीजिंग स्टार्टेड टीजिंग मी कि यू आर ऑन जेआरएफ नॉट जेआरएफ। हम लोगों ने रात को एग्जाम देने के बाद शाम को एग्जाम में पेपर चेक किया है तीनों चारों ने बैठ के, और जैसे मैं रूम पे आया हूँ सब रोने लगे। मैंने बोला क्या हो गया, तो बोलते हैं, यार भाई पेपर कैंसिल हो गया। पेपर कैंसिल हो गया। और ऐसे ही है। फिर उसके नेक्स्ट वाला हुआ, जो उसका री एग्जाम हुआ, तो उसमें मेरे 100 मार्क्स आए, तब कट ऑफ हाई चला गया। 100 मार्क्स पे भी नहीं हुआ। तो था थोड़ा कि यार क्या है ये, ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, कुछ तो आना चाहिए यार, इतना पढ़ रहा इस हूँ बार कितने मार्क्स थे आपके वैसे टोटल? टोटल मैं। 218, जो हटा मतलब ना, 100 मार्क्स, एक्चुअली गुड, 108 क्वेश्चन, 109 क्वेश्चंस। एक्चुअली गुड, 218, yeah, in a second attempt. Acha, हाँ how many hours did you used to spend like while preparing for this political science, particularly for UGC NET? कितना टाइम आप लगाते थे इसमें पढ़ने के लिए? अ, बहुत रेयर बोलूंगा मैं, क्योंकि जो मेरे पास एक मैजिक नोट्स वी कैन से, जो मैजिक सोर्स था मेरे पास, मतलब इट हेल्प मी अलॉट। आई totally dedicated it 70 to 80% I would dedicate my this achievement uh, to your notes। Great. तो लास्ट में बस मुझे 8 to 10 days का टाइम था। एग्जाम था आई थिंक, एग्जाम कब का था ये वाला, 16 तारीख का था क्या? मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं यार, बिकॉज आई एम नॉट श्योर हाँ, अबाउट मुझे भी याद, मुझे भी याद नहीं, जनवरी का था, 6 जनवरी का एग्जाम था। दैट। या हाँ, न्यू ईयर था, मुझे याद है, 6 जनवरी का ओके एग्जाम था। तो उसके आई थिंक क्रिसमस के बाद मैंने ये सब उठाया कि चलो ओके ओके एक ओके बार ओके। नोट्स बनाते हैं, और साथ में तो उसको क्रक्स डे में लिखता चला गया, छोटे छोटे नोट्स, मतलब मेरी इतनी छोटी बुकलेट में पूरी 10 की 10 यूनिट समा गई थी। ओके, दैट्स नाइस यार। इंडियन थिंक I इंडियन would, थिंकर्स I वगैरह सब would love, कुछ। I would love if you can share that notes, that make a PDF of it, and I can share with students, other I students. would actually definitely share, but it's in my library. Uh, Okay, I will share it later. whenever you get time, just share it, na, so that other students can also Sure, also sure, take sure. help from that. Because like अभी cut off high Definitely, हो गया। I would also love to share it। वो जो छोटी छोटी मेहनत करते हो ना आप, बहुत अच्छी लगती है शो करने में, कि देखो ये किया था, Yeah. फिर ये किया था। And उसी से रिजल्ट आता है यार, हाँ, उसी से रिजल्ट आता है। You have to go little extra if you want to get JRF. आपको एक्स्ट्रा जाना ही पड़ेगा, because everyone is preparing same things, right? obvious, everyone is Yes, preparing the yeah, same thing। yeah. तो शॉर्ट में that you preparation for UGC take very much less time from my side, Okay, because everyone was prepared, और अभी recently कॉलेज से फ्री हुआ था। तो okay, okay, okay. फैकल्टीज अच्छे थे मेरे कॉलेज में, मतलब एक उनको भी मैं दूंगा कि सर मेरे फैकल्टी बहुत अच्छे थे, जेएनयू से पास आउट थे, Wow, और that's great यार. पीएचडी होल्डर्स थे, मतलब So you must be आईआर की जो फैकल्टी थी, so you must be targeting आईआर की जो JNU for PhD, right? Yeah, you're ऑब्वियसली, perfect. Yeah, मतलब definitely. उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि श्रेयांश तू तो जेआरएफ उठाओ, जा अच्छी जगह पर जा, Seriously. फिर करना Yeah. मजा आएगा। Yeah, मतलब जो JNU एक is actually beautiful. बहुत अच्छा है यार वहाँ का, like experience, everything is so good there. Definitely you should try for JNU DU particularly. आई Yeah. लव दैट लाइफ। Yeah, that's great. That's great यार. So like if someone is starting from the zero, अगर कोई zero से शुरू कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा to complete the whole syllabus? क्या लगता है आपको? ऑब्वियस वी कैन से, आपको मास्टर्स तो करनी पड़ेगी, हाँ, वो तो और definitely करना होगा. उस उस जर्नी में ही आपको वो सिलेबस को कवर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कहो कि मैं एक मतलब बिना कुछ किए, जैसे एक डमी मास्टर्स कर ली, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने डमी मास्टर्स कर ली बहुत इनसिग्निफिकेंट कॉलेज से, उसके बाद जब वो सिलेबस लेके बैठेगा बहुत कठिनाइयां आएंगी, नहीं होगा, Yeah. क्योंकि आप वो लिंक्स बना पाएंगे जो एक आप समय धीरे धीरे जो प्रोफेसर्स के द्वारा या फिर आपको प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाएंगे, तो इतने बर्डफुल नहीं होंगे आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत प्रिपरेशन से ही ध्यान देना पड़ेगा, और फिर ये तो बूस्टअप है ही।
ओके ओके, ये तो ग्रेट फिर ग्रेट हेल्प करेगी। ग्रेट ग्रेट। मेरा मानना ये है कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आपने छोटा सा सिलेबस है आपने उसको पढ़ लिया। या ये बहुत वास्ट सिलेबस है, कहीं से भी या क्या पूछ सकते हैं, यू नेवर वी हैव नो, नो यू हैव नो आइडिया। आइडिया, नो आइडिया, सीरियसली यू हैव नो आइडिया। क्योंकि एग्जैक्टली exactly, तो आप उसको एक 10 यूनिट के सिलेबस में वाइंड अप नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक वो जेआरएफ का जो सिलेबस, यूजीसी का जो सिलेबस है, वो पूरी तरह बच्चों के साथ फेयर प्ले करता है, क्योंकि वो 10 यूनिट से बढ़ के भी कुछ चीजें चली जाती हैं जो आपको एग्जैक्टली। लगता है कि यार ये तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें ही है, सब्जेक्ट में तो है ना। तो ये होता है। अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं जो सिलेबस से बाहर होते हैं, जो आपको किसी को आइडिया नहीं होता है। ठीक है। ऑलवेज या ऑलवेज। तो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर 10 क्वेश्चन जो होते हैं स्टैटिक, जो किसी को नहीं आ रहे वो आपको आने चाहिए। एंड वो रिवीजन एंड प्रैक्टिस से ही होगा। ओनली देन जेआरएफ। रिवीजन, प्रैक्टिस एंड सम ट्रिक्स। हाँ, एंड सम ट्रिक्स, डेफिनेटली डेफिनेटली। सो लाइक आप बोल रहे थे कि आपको टाइम नहीं मिला ड्यूरिंग योर एग्जाम, राइट? सो कितना टाइम लगा आपको एग्जाम कंप्लीट करने में टोटल? मुझे तो काफी अर्ली हो गया था एक्चुअली। मैंने डीआई की, मुझे पता था कि पेपर वन अगर मैं रुका तो लास्ट वाले में परेशानी होगी, जो मेरा मेन पेपर है उसमें मैं फंस जाऊंगा। तो डीआई को मैंने शुरू में 5 5 मिनट दिए, 5 से 7 मिनट। उसके बाद आई थिंक नहीं यार ये गड़बड़ है, और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे जो उल्टे सीधे थे, बता था ये बनेंगे लेकिन टाइम लेंगे, तो उसको मैंने स्किप किया। पेपर वन जैसे तैसे करके 40 45 मिनट्स में मैंने कंप्लीट किया। ओके उसके बाद पेपर टू बहुत जल्दी हो गया। इट टेक्स अराउंड 80 मिनट्स, 80 to 90 मिनट्स। ओके ओके ओके। मतलब मुझे पास 40 मिनट्स बचे थे मेरे रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने के लिए जो मैंने छोड़े थे। फिर मैं आराम से सारे निपटाने के बाद लास्ट में लेके बैठा, चलो डीआई करते हैं। हाँ, तो एक ये अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे फ्रेंड्स ही हैं जो बाद में शेयर करते हैं कि यार शायद मैं वहां फंस गया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जो एग्जाम सेटर्स होते हैं उनको भी ये चीज पता रहता है कि ये अगर यहाँ फंस जाएगा तो उसका मैं टाइम यूज कर सकता, मतलब इसका टाइम वेस्ट करवा सकता हूँ। तो या आपको वहां उस टाइम को इम्पोर्टेंट, मतलब दिमाग में रखते हुए चलना है कि नहीं ये टाइम इतना ही देना है, होता है तो ठीक है, वरना फिर लास्ट में आके देखूंगा, अभी दूंगा तो पूरा पेपर खराब कर लूंगा या 5 क्वेश्चंस के लिए तो। इवन आई एग्री दैट पेपर वन लास्ट में ही करना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्ट्रांग है, जस्ट गो फॉर पॉलिटिकल साइंस स्ट्रेट। 50 क्वेश्चन सबसे लास्ट में टाइम करो। मैनेजमेंट इज 50 क्वेश्चन, नेसेसरी, हाँ आई थिंक, 50। इन दिस एग्जाम। या फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस सॉल्व करो, उसके बाद पेपर वन। पेपर वन में भी मैथ सबसे लास्ट, मैं सबसे लास्ट, बिकॉज डीआई मैथ्स अब एंड बहुत गंदे जा रहे हैं। हाँ, डीआई। डीआई बहुत ही गंदे जा रहे हैं इस बार, है ना? बहुत टाइम या लेता है डीआई। बिकॉज व्हेन आई क्लियर जेआरएफ, आई गेस दिसंबर 2023 मेरा रिजल्ट आया था, जनवरी 2024 में। तो डीआई वाज इजी, बट आफ्टर दैट आई एम लाइक फॉलोइंग द पेपर्स, द डीआई इज कमिंग वेरी टफ एज कम्पेयर टू पीपल्स, है ना? बिकॉज उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस में होता है, इतना मैथ नहीं होता है। एंड दे आर वेरी ट्रिकी एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं बचता कि रिवाइज भी कर ले। इवन केवीएस मैदान जो मैं बुक अभी रेफरेंस बता रहा था, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे डीआई के, एग्जाम देने के बाद देखे थे। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन से कैसे, मैं पढ़ के नहीं गया, ऐसा था। उसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं थे, बहुत इजी वो क्वेश्चन ऐसे बन रहे थे, मतलब ये तो बहुत इजी डीआई है, उसमें तो मुझे बन ही नहीं रहा था। बाद में समझ में आया कि कोई भी कोई एक रीजनिंग जैसा क्वेश्चन हो जाता है, वो एक बार में होता है, या तो ट्रिक, या फिर वो आप लगे रहो नहीं खुलेगा नहीं या खुलेगा, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो थोड़ा ऐसा हो गया था मेरे साथ। डेफिनेटली डेफिनेटली, इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि डीआई को अब से लास्ट में ही सॉल्व करने के लिए छोड़ दो। एंड पहले रिवाइज कर लो जितना आपने कर लिया पेपर, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज छोटे सो छोटे मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, राइट? यू ऑल्सो ट्राइड दैट थिंग या कि डीआई लास्ट में करेंगे। मेरा मेरा पर्सपेक्टिव ही होता था पहले भी। एंड इवन आई से टू माय स्टूडेंट्स एज वेल नाउ कि डीआई लास्ट में ही करना, उसको मत छुओ। पहले पेपर टू करो कंप्लीट, देन रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस, देन पेपर वन करो, एंड पेपर वन में भी स्लॉगिज्म एट द सेम टाइम, डीआई लास्ट। या एग्जैक्टली बिकॉज यू नेवर नो कितना टाइम लगेगा उसमें। यू कैन नॉट टेक चांस विद योर एग्जैक्टली पेपर एग्जैक्टली वन पेपर टू, बिकॉज पॉलिटिकल स्ट्रांग है आपका। तो फोकस ऑन दैट, एग्जैक्टली। जो आपकी स्ट्रेंथ है। बाकी सब सेम ही। हाँ फिर हाँ, बाकी सब सेम भाग लो। स्टार्टिंग में क्या है, एफिशिएंसी ज्यादा एफिशिएंसी भी थोड़ी ज्यादा होती है, तो आपका एक साथ 100 क्वेश्चन करना, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करना, तो जो एफिशिएंसी है वहाँ ज्यादा अच्छी लग जाती है, आई थिंक, या इसलिए मैं भी प्रेफर करता हूँ कि बनाते चले जाओ एक साथ। या बिकॉज ना पेपर वन में अगर लोगों को सॉल्व नहीं हो रहा है तो उनका माइंडसेट वहीं चला जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं क्या हुआ है, आगे पेपर को ढंग से गड़बड़ फोकस नहीं कर पाते। आगे, फोकस नहीं कर पाते ढंग से। वो 50 क्वेश्चन का एक पेपर 100 क्वेश्चन का पेपर इम्पैक्ट कर सकता है। या डेफिनेटली वो ही मुझे लगता है कि ये चीज़ है। अच्छा, आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे लाइक व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस्ड पर्टिकुलरली, लाइक एनी प्रॉब्लम, एनी चैलेंजेस यू फेस्ड व्हिच पीपल शुड नॉट रिपीट, इवन मिस्टेक्स यू कैन टेल।
फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था जेआरएफ के लिए ही, तब थोड़ा सिंसियर भी नहीं था, लेकिन ऐसा था कि पढ़ा तो था ही, सब लोग दे रहे थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स का हुआ भी था उतने ही सोर्सेस में जितना हम लोगों ने पढ़ा था। तब मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक नोट्स की कमी थी, तो जिसको मैंने सेकंड प्रिपरेशन में उसको सही किया। सेकंड थिंग, रिवीजन नेसेसरी है, वी कैन नॉट अवॉइड Yeah. दिस, क्योंकि आपने जैसे भी बोला था कि स्टैटिक होता जा रहा है, तो द मोर स्टैटिक द मोर विल नीड रिवीजन, Yeah. क्योंकि आप कभी कभार कॉन्सेप्चुअल या फिर एनालिटिकल होता है, तो आपको घर कर जाता है, दिमाग में रुक जाता है कि नहीं ये चेंज नहीं होगा, लेकिन फैक्ट्स भूलने लगते हैं, फेड अवे होने लगते हैं, तो एक वहां मुझे हेल्प किया। तो इन दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए, नोट्स मेकिंग, और Yeah. नोट्स मेकिंग नेसेसरी इसलिए क्योंकि आपको रिवीजन करना है। एंड वन मोर थिंग, पेपर देते टाइम पर काम बिहेवियर बहुत जरूरी है। अब वहाँ किसी स्टाफ से मत कुछ करिए, या फिर एक Yeah. इरिटेशन मत लाइए मन में कि बहुत देर लग रही है, मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर पानी नहीं आया है। बहुत सारी चीज होती है, या फिर आसपास कम। यू वोंट बिलीव, मेरे साइड से एक और कैंडिडेट बता था, ही वाज लाइक भैया बता देना, है ना। होता है, कुछ होता है. मुझे टाइम, तो मैंने बहुत काम जी, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप डिस्टर्ब मत करना। मैंने उसको पहले ही बोल दिया था, आप डिस्टर्ब मत करना, मेरा पेपर होने के बाद मैं कुछ, मुझे पता था टाइम ना उसको मिलेगा पूछने का ना मुझे पढ़ने का। लेकिन अगर मैं वहां जाके कुछ इशू क्रिएट करता कि सर आप ऐसा बोल रहे हैं भैया, Yeah. तो वो डिफ्लेक्ट कर देता है, आपके दिमाग में कुछ और चलता है लेकिन यहाँ कुछ और, तो Yeah, नॉट मेनी because थिंग्स, paper, छोटी छोटी yeah, चीजें रोल प्ले करती you हैं। have to attempt 150 questions, और questions में भी पता नहीं आपको क्या आएगा क्या नहीं आएगा. You have to have a very calm mindset कि हाँ पेपर करना है 100 के 150 के आप 150 अटेम्प्ट करना है. आप यहाँ से प्रिपेयर करके जा रहे हो, आप 15-20 दिन, मतलब जितना भी, मतलब लोग महीनों मेहनत करके जा रहे हो, वहां जाके अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जस्टिफाइबल नहीं होगा, इसलिए आई थिंक इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। Yeah. Like for example, ये like भी है। I have heard, I have met people like who are preparing for JRF like for a long time. 2 to 3 attempts दे चुके हैं, उससे ज़्यादा भी दे चुके हैं. Still they are not able to clear that particularly. Like you also like attempt for another June, right? June 1 to clear या JRF, right? या I think you can clear it. I या believe you will clear it if you study properly. So like what do you think, क्या मिस्टेक वो करते होंगे particularly कि उनका नहीं क्लियर हो पा रहा है despite these attempts and preparing really well. ऐसे कुछ नोन एग्जांपल्स मेरे भी हैं, यू वोंट बिलीव, जो मेरे प्रोफेसर हैं, ही हैजंट क्लियर नेट टिल नाउ। Okay. उनका पीएचडी कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो उनका नेट क्लियर नहीं होता। हम लोग साथ में एग्जाम देने जा रहे हो, तो सर जून वाला एग्जाम जब मैं देने गया था, मैं इंदौर में ही था, तो सर आप यहाँ, मुझे लगा सर हम लोगों को चीयर अप करने आए होंगे, चलो बेटा एग्जाम देने चलते हैं। बोलते तो बेटा मैं भी देने आया हूँ, नहीं सर आप Okay, this is so एग्जाम देने आया। funny. This is लेकिन so funny. ही वाज वेरी ब्रिलियंट, ही वाज वेरी ब्रिलियंट, मतलब मैं बता नहीं सकता वो इस लेवल के हैं। आर्टिस्ट भी हैं थोड़े, तो आप समझ लीजिए किस Okay, काइंड okay, के okay. होंगे। तो तब उनसे मैंने कुछ चीजें पूछी कि सर क्या प्रॉब्लम्स क्या है, हो क्यों नहीं रहा। मतलब ठीक है, मतलब एक तो क्या है, एक इनसिंसियर प्रिपरेशन हो जाता है कि आप सिंसियरली नहीं कर पा रहे हैं पेपर। सेकंड थिंग, पेपर वन नेसेसरी है, आप रिलाई नहीं कर सकते, मतलब आप इसको बहाना नहीं बना सकते कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मेरा रीजनिंग नहीं होता। आप पेपर वन, आपको पैरेलली जितना आप पेपर टू पढ़ रहे हो उतना ही 80% भी मान लो, लेकिन थोड़ा कम मान लो, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पेपर वन पे Yeah. फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, अब आता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबसे बन रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं निकल रहा है, कहीं ना कहीं वो उसमें लैग कर रहे हैं, जैसे पॉलिटी का पोर्शन। Yeah. पॉलिटी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको 10-12 क्वेश्चन जो भी मिल रहे हैं, पॉलिटी और रिऑर्गेनाइजेशन वाले जो एरिया जो आता है, उसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा। Yeah. जो लोकल गवर्नेंस के जो क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन ऐसे सबसे बन रहे हैं। अगर आप इसमें गलती कर रहे हो तो आप वैसे ही रेस में पीछे हो रहे हो। तो मुझे लगता है कि कुछ फोकस एरियाज पेपर टू के, उनको मतलब जो अन जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज अनकॉम्प्रोमाइजेबल जो फोकस एरियाज हैं, उनको आप नहीं छोड़ सकते, पेपर वन नहीं छोड़ सकते हैं आप, और थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा। Yeah. Yeah. अच्छा मेरे पर मतलब काफी डिस्पाइट क्वेश्चन आते. डिस्पाइट 3 to 4 attempts अगर नहीं हो रहा है, तो आई थिंक कुछ कहीं ना कहीं तो आप इन्हीं कुछ एरियाज में से आप लैग कर रहे हो। Okay, okay, great, great. Even I agree with that. मेरे पास काफी क्वेश्चंस आते हैं that मैम that काफी सारी definitions हैं, right? Everyone has given different definition, okay, of the same topic. If you are talking about liberalism, right?
लिबरलिज्म के भी एग्जैक्टली 15-20 डेफिनेशंस होंगे एंड यू नेवर नो कौन सा पूछ लेगा. So how to cover that? Even the books, there are so many books available to yeah mug up in mind. So वो आपने कैसे किया? Because वो चाहिए होता है इन बंदे माय को. इन माय ओपिनियन व्हाट हैपेंड के जब मैंने पीवाईक्यूज देखे, आई केम टू नो के बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उससे बहुत बल्क में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फोकस एरिया नहीं है वो उनका। वो अगर रियली आपसे पूछते भी हैं तो उसके लिए मैं प्रिपेयर इस तरह से करके गया था। मुझे पता था मैं इसमें अगर ज्यादा टाइम दूंगा तो मैं अदर चीजें उन पर फोकस नहीं कर पाऊंगा, उनको भूल जाऊंगा। टाइम मेरे पास वास्तव में बहुत कम था। Okay. मैंने 10 से 15 दिनों में कुछ मतलब प्रीवियस वर्क था, नो डाउट, क्योंकि आप 10-15 दिन में कोई भी एग्जाम नहीं नहीं क्रैक कर नहीं, फॉर सकते, एग्जांपल अगर इट्स लोग इंसान टेक्स टाइम। अगर अगर इंसान स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहा है, बिकॉज अभी जेआरएफ क्लियर करना है तो यू हैव टू हैव गेट इनटू दीज थिंग्स एज वेल. आपको ये 15 के 15 पता होने चाहिए वर्ड बाय वर्ड कि मतलब एक वर्ड पकड़ लिया एंड दिस इज द थिंग. एग्जैक्टली। ठीक है, इस अब वर्ड का ये जैसे मीनिंग करें. आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट एग्जाम फॉर यूपीएससी एपी, या ओके. मैंने आपको शायद बताया था। या तो अब जैसे मुझे उसको क्रैक करना है तो वहां मेरे पास चॉइस नहीं बचती है। अगर वहां करने के लिए मुझे फिर यही सब स्टेटमेंट्स याद करने पड़ेंगे, कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो इनको मैं कनेक्ट करूंगा। जैसे मैंने अभी इस वाले मैंने बहुत इनफॉर्मल वे में कनेक्ट करे थे। मैंने ओके. जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे ओके, मैं एग्जांपल. पूरा स्टेटमेंट एज इट इज नहीं याद कर सकता, मुझे अभी कोई रिकॉल नहीं हो रहा है। जस्ट लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ मैंने ऐसे याद किए थे, पवेट की जो डेफिनेशन है कि ओके. ओके. वुडरो विल्सन ने कुछ लग दिया इन्होंने, तो मैंने कुछ एकदम कीवर्ड्स जो मुझे बस कनेक्ट होने चाहिए और पेपर के जस्ट पहले पढ़ के गया था कि मैम बस ये कनेक्ट हो जाए मुझे वहां जाके, क्योंकि मुझे थोड़ा बर्थफुल भी नहीं लगे वो कि इतना मैं अगर उनको याद करूं तो कंसेप्चुअल काम करता है थोड़ा, तो इस तरह से कुछ ओके. ओके. कीवर्ड्स हेल्प करते हैं बस। या इवन आई एग्री कि अगर 15 डेफिनेशंस है, 15 डेफिनेशन पे एक एक कीवर्ड उठाओ, एक एक उसका ऑथर उठाओ एंड जस्ट रिवाइज इट और ऑन थोड़ा कंटिन्यूअस बेसिस एंड सॉल्व एज मच एज यू कैन. दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द स्टेटमेंट ना। या तो सिंपल. आप उसका फायदा ले या सकते हो, तो अगर या स्टेटमेंट में ही रखने वाले तो कीवर्ड भी। इवन देयर इज अ वेरी तो गुड वर्ड बुलवर्क, इफ आई एम एबल टू रिकॉल इट. बुलवर्क अगर आप करते हो बुलवर्क, ये रुडोल्फ ही देता है. In any of its हम्म definition, even its books, bulwark आता ही आता है. तो even I say to my students, guys, bulwark आए ना, Rudolph option है, just take it. Okay, just know the what he has given already. थोड़ा concept clarity रखो and this word आ रहा है तो वहाँ पे टिक कर दो. No need to, because एग्जैक्टली। elimination आना चाहिए. Because आप एलिमिनेशन मस्ट है, because क्योंकि आप हर definition या हर book नहीं कर सकते. तो जो बट है वो आप वर्ड के थ्रू करना पड़ेगा आपको, अगर आपको जीआरएफ टारगेट और करना है. इसका ये एलिमिनेशन फ्रूटफुल उन लोगों के लिए ये जो कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो माइनस मार्किंग किसी के लिए नहीं है। या तो कोई ना हिट एंड ट्रायल सब करेंगे, हिट एंड रन वाला जो ट्रायल सब करेंगे, तो आपको एलिमिनेशन अगर करते बनता है तो आप इसमें लीड कर दोगे। या सिंपल है। दो तरीके हैं एलिमिनेशन करने के. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू नो द आइडियोलॉजी कि पर्सन ने क्या बोला है, अगर आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, थीम, अगर आपको कनेक्ट कर पा रहे हो द थीम को. वेरी हाँ, थीम को कि ये बंदा ये बोल सकता है, तो यू टिक दैट फर्स्ट. और सेकंड, एग्जैक्टली। अगर आपको एक दो वर्ड भी पता है उसका किस वे में बोलता है या क्या बुक यूज की है, किस एक भी बुक आपको पता है, तो यू कैन क्लियर ऑल द फोर. बिकॉज वो सिंपल डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं. एलिमिनेशन बहुत वर्क करता है। बिकॉज क्लियरली ऑप्शन होते होते हैं, एक भी आता है आपको सारा, यू कैन टिक द आंसर करेक्ट. राइट. मैंने मैंने लगभग काफी सारी बुक्स देख के गया था कि ये इसकी है, तो दिमाग में यही था कि देखो अगर वहां पर मैच कॉलम में एक या दो बुक भी बन गई तो मेरा पूरा हो क्वेश्चन बन जाएगा. जाएगा, मुझे पता पूरा हो था। जाएगा. इसलिए बहुत लिमिटेड, मतलब आपको अपने आप को लिमिट, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है आप सब नहीं पढ़ सकते, तो आपको या लिमिट करना पड़ेंगे चीजों को। तो हेल्प करता है ये छोटी 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 चीजें, लाइक एलिमिनेशन डेफिनेटली. जैसी चीजें हेल्प करती हैं। एलिमिनेशन बहुत हेल्प करता है। सो आपका ये पहला मतलब एग्जाम था ये जो तो अभी तक क्लियर हुआ, राइट? या So it, yeah, so you must be very happy about it. And your second attempt you cleared with 2 under 18 marks. हाँ मतलब अब JRF मैंने क्लियर. बताया, मैंने घर पे किसी को बताया नहीं, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह का कॉल आ गया दीदी के पास, तो बोलता है कि शायद का दीदी नेट हो गया, बोलता है, अरे वाह। तो मैंने तो किसी को बोला नहीं था कि ऐसा कुछ है, तो उन्होंने पापा जी वगैरह बोल तो अच्छा है यार, करो आगे करो, अच्छा ही दैट्स होगा नाइस, कुछ दैट्स तो। नाइस. तो यूपीएससी की कोचिंग आप इंदौर से कर रहे हो अभी? मैं अब सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ इंदौर में, ओके. मास्टर्स की थी, अभी तो कोचिंग नहीं की है मैंने। ओके. 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 नाइस, नाइस. अभी तो अटेम्प्ट नहीं दिया ना, हाँ, यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट होगा. नहीं नहीं नहीं, या. इट्स गोइंग टू बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड तो व्हाट वो अबाउट. थोड़ा हाँ. कॉन्फ्लिक्ट रहा है, ओके. ओके. क्योंकि एपी का भी एग्जाम है, अटेम्प्ट भी है, और हालांकि मेरा यूपीएससी का सिलेबस भी क्लियर कवर नहीं है, कवर अप नहीं पूरा, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा शायद एपी के एग्जाम को ही ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। तो अभी आपका ऐसे यूजीसी नेट खत्म हुआ, आपका पीएचडी का क्या प्लान है आगे? पीएचडी कब आप एनरोल करने की सोच रहे हो?
तो आई थिंक आपको कर लेना uh, चाहिए, जेआरएफ आ जाएगा। बिकॉज ना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इवन दीज डेज आफ्टर क्लियरिंग जेआरएफ टू गेट पीएचडी। अगर आपको जेएनयू ड्यू टारगेट कर रहे हो ना, तो आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रपोजल, टाइटल, रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। मैं उसी पे या थोड़ा रिसर्च अभी मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठ के उसी पे थोड़ा हम लोगों ने शेड्यूल भी किया है, एक दिन बैठ के करते हैं, क्योंकि थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या लिंक्स खुल रही हैं, कितने गाइड्स वगैरह क्या हैं। तो मैं देखो जेएनयू तो मुश्किल है जाना, देखो इट्स गोइंग टू बी। देखो जे मुश्किल तो लोगों को जेआरएफ भी लगता है, बट पीपल क्लियर इट, राइट? सो अगर मेरे को सजेस्ट करना हो ना आपको, तो जस्ट ट्राई टू मेल प्रोफेसर्स वॉट एवर द फैकल्टीज इन योर स्ट्रीम, पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च। जस्ट मेल देम फॉर द गाइडेंस, आज देम इफ दे कैन लुक। अभी टाइम लो, थोड़ा रिसर्च करो, प्रॉपर बनाओ उसको, एंड देन मेल प्रोफेसर्स, ड्यू के भी, जेएनयू के भी, इन ऑल वॉट एवर इंस्टीट्यूट यू आर इंटरेस्टेड इन। बिकॉज या पर्टिकुलरली जेएनयू और ड्यू में प्रेफरेंस चलता है, थोड़ा बहुत कनेक्शन चलता है। You have to build that relationship with professors if you want to go ahead. आई थिंक Yeah. सम ऑफ देम हेल्प मी, Okay, okay, क्योंकि okay. मेरे प्रोफेसर वो मेरे को करवा देंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो। That's great, that's great. But बाकी research proposal should be must, मतलब काफी अच्छा होना चाहिए। और क्या, तभी ऑब्वियस तभी yeah, कंसीडर करेंगे वो लोग। definitely, definitely, ठीक yeah. है, थैंक It's यू फॉर दिस thank, yeah. एडवाइस। So it's great talking to you, Shranj. Really nice. कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? Yeah, sure. How do you come across this uh, initiative of your particle science solution? Actually, यार, I have done. मैं अपना background देती हूँ, okay? Not, yeah. हाँ, sure. So I have done my grad and क्या कहते हैं, my post graduation in political science only from Delhi University. Okay, then yeah, Okay. Which yeah. college? JDMC, Janki Devi. It's official, it's a Okay. off-campus college, but it's a very good one. It's all girls college. Okay. So I have while I was doing my education and all, I was also working as a content writer, freelance content writer. So I worked with many websites Okay. like College Dunia, Shiksha, Career Guide, Blue Rose Publications, even Oswal. So I have a lot of experience in Okay. content writing. So I was like, after completing my grad, I wanted to do something which yeah, which can make me feel that yeah, I need this platform, because I am someone, I don't like to go through different resources, because it gets you confused what to cover, what to not, is it enough, is it Yes. not. So while I was preparing for UGC net, I found some gaps. I used various resources like whatever available on YouTube, Ignu notes, but still, even my first attempt, I was not able to crack it. So I also have a habit of making my own notes. So I decided to Yeah. create a platform which can be which can be enough of students to cover the whole syllabus, and also complete cover the like conceptual and factual part. And whatever they think about political Exactly. science, they only have this mind, and this political solution will help them out in any way. So that was my idea to, It's doing. yeah, to create a platform, to It's create a lucky. community, yeah, to create a community around that. And I'm really glad whenever I hear that any professor is using for their class, or any student clearing their exams, it always makes me happy that yeah, what I try to build, it is actually helping people. So that was my first motive, and I believe that I am trying to achieve it a little bit slowly, slowly. We are helping students, yeah, and we also made sure that we keep our prices very affordable, because coaching show charges thousands of rupees, and still people are not able to clear exams, right? So my Obvious है. so my motive was like, okay, we'll be very affordable, make sure we provide guidance and proper notes, so that in their first attempt only they can clear, and they can move forward in their journeys. At the same time, पॉलिटिक्स साइंस ना लोगों को पता नहीं होता कि क्या करियर स्कोप है इसमें। People either for UGC net, either for कहते हैं UPSC or a professor, but there are other things as well. Obvious. But there are other things as well. There are think tanks. Political advisors There are, like yeah, there are think tanks. think tanks, political consultants, and there are a lot of other options as well. So we always make sure that we keep on posting about the opportunity, so that people also can explore that. So that was my motive. Yeah. एक्चुअली इनके जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ब्लर है, मतलब फेट्स हैं, पता नहीं चलता रिक्रूटमेंट कैसे हो रहे हैं। Yeah. तो आई थिंक मेरे साथ तो ये शायद प्रॉब्लम है, मुझे अभी तक पता ही नहीं चलता कि इनके रिक्रूटमेंट्स कैसे हो रहे हैं। मैंने काफी थोड़ा बहुत सर्च भी नहीं किया। नहीं नहीं, एडवर्टीजमेंट्स आई आते हैं, डिडंट। नहीं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ओके। इफ यू आर इनटू राइटिंग, यू कैन सिंपली गो टू सम वेबसाइट, द करियर ऑप्शन, करियर पेजेस होते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो सीधे मेल डाल के दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रोल। और वी ऑल्सो लाइक टेल अबाउट द एडवर्टीजमेंट ऑन आर चैनल्स, देयर इज अ व्हाट्सएप चैनल, आई एम नॉट श्योर ओके। if you are part of it or not. We also share the आई एम things. पॉलिटिकल ग्रीक्स ना? Political science, no, 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 it is a channel also, there's a channel also, we provide we share all the आई एम political नॉट। I'll share with you. Okay, just join that.
Well, if there's any vacancy like political consultant, even for research projects, if there's a requirement for field investigators or assistants, because people think that Yeah, what is yeah. the scope of it? People can earn around up to 1 lakh in political doing political science only. Okay, if you have cleared JRF, right, you can also work on the projects, research projects worldwide, in India as well, right? वो post आते रहते हैं from Delhi University, I from would yeah. I would like I would like to do मुझे इस काइंड की जॉब्स बहुत अच्छी लगती हैं मतलब ये In fact, you थोड़ा should do. If you want to get into PhD now, you should do it because it will give you a matlab, a add on to your CV that you have already worked on a such project. So you एग्जैक्टली can be a very good person to get selected for this role. So definitely, even I worked on as a field investigator recently with the ICSSR project. Yeah, so I am also trying to figure this out, and it's actually very helpful and insightful. You learn so many things, and you work like it is from Presidency College, Bangalore. Okay, so you meet professors there, you do field एंड दैट study. एक्सपोजर Yeah, even दैट you delightful. yeah even you do the field study that I visited Northeast recently, the whole Northeast part for my field study because it is around border surveillance, something like that. So it was a ओके very good experience. So I really feel that people should explore these things as well while preparing because definitely financial independence is important. Second, yeah, knowledge. जितना आप करोगे उतना आपको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होगा आपको एक्सपीरियंस होगा that really helps. That is, yeah. So okay. दैट I'll share the link. Just do join the channel, okay? Because whatever we श्योर get श्योर the opportunities, we also share with students so that they can apply and have that experience. श्योर Yeah. So it's nice talking to you, Shreyansh. सो Anything you would like to say? थैंक यू मतलब I'm glad. I'm glad. again we can say but it was very nice talking to you too for me uh, Great, one great. more Yeah, sure, thing sure. uh, is that whole content written by you Yeah, it is. It is. It is written and edited by me. solely Yeah. solely by you As of now, so yeah. For UGC Net, yeah. पिता महा है आप तो Yeah, please, yeah, please. No, no, no. uh, It also took it's- it also took a lot of time. We started, matlab, for the whole course completion of whole course was done last September only. So that's how we decided to focus on SEO. And how did you find out about partisan solution? Do you, are there yeah any through friend or actually Google or friend? हाँ नहीं 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 गूगल के थ्रू ये मेरा Okay, पूरा सेल्फ डिस्कवर थिंग है okay, ये okay, 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 okay. इसमें समडे मैं ग्वालियर लाइब्रेरी में था तो आई वाज चेकिंग के क्या है कुछ मतलब मैं कुछ आई साइट अबाउट आई थिंक कंफ्यूशियस Okay, द okay. चाइनीज वन तो Okay, 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 okay. तो शायद आपका वो कंफ्यूशियस वाला जो था वो Article, okay. विदाउट मेंबरशिप हाँ विदाउट मेंबरशिप के लिए ऐसा कोई मैंने सर्च किया था तो Okay, 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 okay. आई केम अक्रॉस इट तो मैंने देखा कि इस पे तो और भी सारे हैं तो मुझे Okay, लगा okay, अच्छा ही okay. पढ़ते हैं तो मैं पढ़ते चला गया मैंने इंडियन थॉट्स करे तो आई थिंक पहले वाले आपके इंडियन थॉट फिर वेस्टर्न डब्ल्यूपीटी They, वाले they, कुछ there, पता there are two units that are free. That is Western political thought and the political concept. We made it purposely free for the students so that they can have a good experience and understand the quality of हाँ content for that. आई केम अक्रॉस डब्ल्यूपीटी और मैंने उसको पढ़ा तो बहुत अच्छा एकदम क्रस कंटेंट लगा मैंने काम हो गया इसमें आपको समझ में आ जाता है कि आपको कितना चाहिए और मुझे वो मिल गया था फिर मैंने कहा चलो आईपीटी भी इसी से आईपीटी करते हैं तो ये तो पैसे मांग रहे हैं नहीं चलो पैसे दे के करते हैं जब कंटेंट अच्छा है तो देना बनता है तो अच्छा था मतलब वो बहुत हेल्पफुल है नो डाउट और Great. मैं भी मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स को सजेस्ट किया कंसर्न ये था सम मेरा एक फ्रेंड है तो मैंने उसको बोला कि भाई ये अच्छा है तू ट्राई करके देख इससे पढ़ के देख वो भी उसका नेट हो गया है उसका जीआरएफ नहीं हो रहा है तो काफी ट्राई कर रहा है तो लेकिन उसके साथ कंसर्न है आप अगर कर पाए तो आप इसका हिंदी में भी करने का कोशिश करिए नहीं नहीं एक्चुअली द थिंग इज हिंदी में ना लैंग्वेज इशू हो जाता है कई बार काफ़ी चीज़ें वो ट्विस्ट हो जाती है बट पीपल कैन ट्रांसलेट एज वेल यूजिंग गूगल ट्रांसलेशन बिकॉज काफ़ी लोग ना करते हैं बिकॉज यूट्यूब पे आपको गूगल ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा बट हमारी जो वेबसाइट पे काफ़ी लोग कन्नड़ में भी पढ़ते हैं काफ़ी लोग तमिल में भी पढ़ते हैं गूगल ट्रांसलेशन कॉपी के नहीं थ्रू होता ना हाउ कैन वी ट्रांसलेट नहीं नहीं यू कैन ट्रांसलेट यूजिंग गूगल क्रोम you can translate the whole website in Hindi as ओके well. ओके ओके Yeah, ओके yeah, ओके yeah. ओके Because I have इट students में हेल्प जो कन्नड़ में भी पढ़ते हैं जो so yeah, so I ask him to prepare like use Google Translation and he'll be very like, good with that. हाँ ये लाइक थोड़ा हिंदी में कंटेंट चाहिए तो चलो Okay. करते हैं कुछ कभी बात होगी तो Yeah, yeah, yeah.
And चलिए even we are always there to help him out with any doubt if he has. Okay. Yeah. sure. That's it's really So nice talking to you. okay, It's really nice talking to you. me Yeah. too, me too. So thank you so much for sharing your insight and overall experience. I hope it will help the other students as well who are preparing for it. So Definitely, definitely. so it's a wrap. That's it. Thank you so much Yeah, once sure. again. Thank Thank you. you.